So I was going through the comments in the last of the last session, and I went through almost all comments. In fact, all comments altogether, and I felt I should do a very concise, precise session. How to actually score more than 180 plus or 150 plus. But see, this is a very subjective thing, and subjective topic है 180 plus. Today, what I will do is I will concise based on what your scores were in February or March. So with this, we'll start the session. We'll keep it very brief, less than 15 minutes and right on point. And we'll cover if you are less than 50, what you should be doing. If you are less than 105, what you should be doing. If you are less than 150, what you should be doing. और ऊपर वाले बच्चों को तो बहुत क्लियर है, आपको एकलव्य ज्वाइन करना चाहिए. So we'll start the session in just 5, in 4, in 3, in 2, in 1. And फटाफट एक बार यो हो जाए chat box में, and then we'll start. Come on everyone. I need some energy. I know you are drained out of the energy after after a long session, but let's start with this. Will not waste our time. For all those who are watching me for the first time, I'm Anand Prakash, co-founder of Vedantu, and of course I have produced so many ranks, but important is you kids. And if you will actually get to your desired rank by the strategy that I will be telling, I will be more than happy. So let's go ahead and talk about exactly and few of the students who qualified last year, and people talk about results. मैं इस साल का result नहीं बताता हूँ, मेरा टोटका है. So that is something that I really don't tell the public till the time final exams का result आता है. आप numbers देख लेंगे, नाम, picture, ये सब हम कुछ नहीं बात करते हैं, because we believe that the story is just started. It is not the end, and the end will happen only after the JEE main final conclusion, जो कि मई में होगा, या फिर after the JEE advanced results. Till that time, I just keep the results close to my chest so that we work on our kids and finally push them to get a greater rank. मतलब अगर अभी कोई 10,000 पे है तो उसको 1000 पे कैसे लेके आएंगे, और कोई 1000 पे है तो उसको 100 पे कैसे लेके आएंगे. That's the target, and we are working, and our team is working constantly towards it. So let's go ahead and we'll quickly. This is where we started our last lecture, and I asked you a question that where do you stand, A, B, C, D, E, and I was going through the comment section, and I found that most of you who actually either in the chat section, जो कि अभी live chat है, और बाद में comment section में भी C, D, E में बहुत सारे बच्चों ने fill किया था कि either they stand at C, stand at D, stand at E, and therefore yes, I can see here also C, D, E is the maximum proportion in the chat, and therefore my सेशन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सी डी ई, क्योंकि इन दोनों बच्चों के लिए तो बहुत क्लियर है, इन दोनों बच्चों को एकलव्य ज्वाइन कर लेना चाहिए. एंड एकलव्य इज अ फ्री एडवांस प्रोग्राम, एंड स्टूडेंट शुड ज्वाइन एकलव्य इफ यू आर 150 एंड अबव. यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, और लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि यहां वाले बच्चों को अगर अभी भी इंप्रूव करने का मन है तो आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए और प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए. 2018 से 2021 के मतलब टिल मार्च अटेम्प्ट यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर. सो ये दिस इज वेरी सिंपल, बट विल मूव ऑन टू दीज स्ट्रेटजीज. ओके, चलो क्विकली. यस, सो अब यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट एंड विच यू एक्चुअली शुड लुक. कैसे स्ट्रेटजाइज करना है, आप देखो. This was your first paper and this was your second paper, and the gap between them was only 16 days, whereas first और third के बीच में gap was 59 days. So any student who gave the first should give the third, because वहां पे आप देखो the gap is very much. अब यहां पे तो gap नहीं रह गया, but this gap was very much, and first and third को बिल्कुल optimize करना चाहिए था. So this because of the gap. एंड 1 के बाद आप 4 भी दे सकते थे, बट जनरली इतना देर वेट नहीं किया जाता, तो 59 days इज गुड एनफ फॉर मी टू रिवाइज ऑल द लेक्चर्स. सो दिस इज वन गुड प्लान, बट नाउ 1 and 2 आर ओवर. सो व्हाट शुड वी डू? सो क्लियरली 2 और 3 के बीच में 39 डेज हैं, और 2 और 4 के बीच में 66 डेज हैं. सो इफ यू आर लेस देन 50 मार्क्स, इफ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 50 मार्क्स और स्टैंड एट ई, देन क्लियरली आपको इसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए फॉर नेक्स्ट 66 डेज, एंड यू सडनली यू विल फील दैट यू हैव मोर डेज in front of you to prepare for that exam. So this is one strategy that you should also keep in mind, the gap between different examination. Although you will go and attempt,
but your syllabus completion, your preparation, topics which you have to complete, you have to actually keep this in mind rather than this in mind. But rest, जो भी बच्चे 50 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, you should focus on the third because there is a considerable amount of gap between the second and third, which means जो अभी March attempt है, between this and April there is a considerable gap. But yeah, and therefore May में मैं generally इसीलिए फोकस कर रहा था यहाँ पे कि because May में CBSE का बोर्ड एग्जाम भी है, तो इसलिए this attempt is a very important attempt which will be the third attempt. The third attempt is going to be extremely important and therefore ये 39 days is big enough. लेकिन जो बच्चे 50 के नीचे हैं, आपका मैंने बोर्ड के साथ ही सिंक कराया है and therefore this is a very important thing which you should keep in mind. Okay, let's go ahead. You should take a snapshot. सबसे पहली चीज, any student who has scored less than 50, we'll talk about them and we will target to get them above 120. That should be our first target. Because ultimately, if anyone has got less than 50, I can't say that you can go ahead and get 200 or 300 or 250 plus. So पहला incremental step करते हैं और कोशिश करते हैं in March attempt we should target 120. March, although हमारा April will be final target, but we'll focus on March to improve our marks to 120 plus. Okay, so this is how to improve. So these are few of the topics which I have mentioned: maths, chemistry and physics. और मैंने उसके अगेंस्ट व्हाट आई हैव रिटन डाउन इज परसेंटेज स्कोर. फॉर एग्जांपल, अगर इन टॉपिक्स को ढंग से कर लिया जाए तो यू विल बी एबल टू स्कोर 40%. इन केमिस्ट्री के टॉपिक्स को कर लिया जाए तो 50% और 40%. नाउ क्लियरली जस्ट मार्च टू अप्रैल, सॉरी, यस अल्ट्रॉन, मार्च टू अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं. सो नाउ लेट्स सी ओवर हियर. अगर आप इसको देखोगे मैथ्स को, सो मैथ्स में आई हैव टेकन टॉपिक्स डेफिनेट इंटीग्रेशन, limit continuity and differentiability, AOD, matrix and determinant, vector and 3D, all 12th topic. And clearly your board will be prepared because you are preparing these topics. Your board will automatically be prepared. And इसको करने के बाद आपके maths में 40% आएंगे. कहां से करना है? We'll talk about that. Chemistry, clearly solutions, chemical kinetics, only topic which I have picked, P block. P block में भी आपके 11th में भी है, 12th में भी है. Therefore, P block I have picked up over here. Chemical bonding is something which I have picked from 11th and general organic chemistry and hydrocarbon because इसके बिना आपको 12th की ऑर्गेनिक भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको पिक किया था. बट अगर आप ये कर लोगे तो दिस इज मोर देन 50% ये वाले टॉपिक्स, और उसके बाद केवल एनसीईआरटी पे फोकस करना. सो आई विल टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स और कहां से करना है इन द नेक्स्ट स्लाइड. आई विल टॉक अबाउट दैट. एंड मैथ्स फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, वेव एंड ऑप्टिक्स. सो वेव ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स सिंपली करना है आपको, रे ऑप्टिक्स, एंड क्लियरली यहां से भी 40% स्कोर हो सकता है. सो these are the topics. You should take a snapshot of these topics and you should focus on only these topics for May attempt, slowly and gradually moving from April to May. तो April में आप देखो ये टॉपिक्स हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अप्रैल तक. ये टॉपिक्स हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इसको लीव कर देंगे, और अप्रैल में हम ये टॉपिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो वंस वी कंप्लीट दिस इन अप्रैल, आई एम कॉन्फिडेंट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो यू विल बी एबल टू स्कोर अराउंड 120 125. पेपर इजी आएगा, टफ आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है. एंड गिरीश, मैंने इसलिए भी नहीं ऐड किया, आई डोंट वांट एनी 11 टॉपिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो, यूनिट डायमेंशन, एरर एनालिसिस अगर करना चाहते हो कर लो, बट first preference will be these topics. Until unless you complete these topics, I don't want you to move to any 11th topic because you actually are reading NCERT. आप NCERT की चीजें करोगे, आप उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, तो 12th पे फोकस रहेगा, सो दैट 12th की बोर्ड की भी तैयारी आपकी हो रही है. ऐसा नहीं हो कि इसके चक्कर में बोर्ड में बहुत ही कम नंबर आ जाए. सो क्लियरली वी विल फोकस ऑन दीज टॉपिक्स. एंड ये कहां से करना है देखते हैं. एनसीईआरटी केमिस्ट्री, एनसीईआरटी केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री प्लस वन शॉट वीडियोस, जो कि यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस हैं, वो वन शॉट वीडियोस को आप देखोगे, एनसीईआरटी को रीड करोगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2018, 19, 20 एंड 21, ये 4 साल के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करने हैं, घोटने हैं ऑफ ओनली द टॉपिक्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड अबव. ठीक है, केवल उन्हीं टॉपिक के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे 2018, 19, 20, 21. उसके साथ वन शॉट वीडियोस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वन शॉट में
I know I have discussed with my team and they have covered almost each and everything. 2 hours और 3 hours की classes कई बार हुई हैं and therefore they have covered almost everything. Link is in the description of all the topics. जो भी टॉपिक यहां पे दिया हुआ है अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको, वो लिंक नीचे दिया हुआ है और उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको सारे टॉपिक की लिस्ट आ जाएगी और जिस टॉपिक को स्टडी करना है बस उसको क्लिक करो, इट विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर पेज ऑफ यूट्यूब. ठीक है. मैथ्स में आर डी शर्मा सब्जेक्टिव ये बुक करनी है और फॉर दीज टॉपिक्स, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं. अब आर डी शर्मा करने से क्या हुआ, आपके बोर्ड की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ साथ में आप जेई मेन की भी तैयारी करते रहोगे. सो दिस इज फॉर मैथ्स. एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ में. एंड फिजिक्स में नो सच गुड बुक एक बार में इन टॉपिक्स के लिए एकदम से जो रिवाइज हो जाए. मतलब एच शर्मा में थ्योरी थोड़ी कम है, क्वेश्चंस अच्छे हैं. डीसी पांडे में अब थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है. तो बेसिकली आई वुड प्रेफर जो भी आपके कोचिंग का नोट्स है आप उसको रिवाइज करो और वन शॉट वीडियो देखो और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो इन टॉपिक्स के. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव एंड रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स. और इनफैक्ट ये जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इसके लिए एनसीईआरटी रीड करनी है. सो एनसीईआरटी फॉर दीज टॉपिक्स प्लस वन शॉट वीडियोस एंड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये करने हैं. सो 50 जिन बच्चों के 50 से कम नंबर आए हैं, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं क्विकली सो दैट वी मूव टू द नेक्स्ट cohort of students. So all students who have scored less than 50, you have to actually focus on the selected topics which I have mentioned over here, and these topics, ये जो टॉपिक्स यहां पे लिखे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है अभी आपने. तो ये टॉपिक्स आपको ढंग से करने हैं, इन्हीं टॉपिक्स से फोकस करना है. और इसके साथ साथ ये कहां से करने हैं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में the best book is NCERT and you have to read NCERT and solve previous year questions for these topics. Maths में you have to actually solve R.D. Sharma subjective and then previous year questions for few topics. और बाकी सब बोर्ड, बिकॉज आपको बोर्ड पे भी फोकस करना है तो बाकी टॉपिक्स 12th के जो बाकी टॉपिक्स है वो एनसीईआरटी मैथ से करोगे. और फिजिक्स में बाकी टॉपिक्स एनसीईआरटी से करोगे और ये जो टॉपिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोचिंग नोट से, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स आप एनसीईआरटी से रीड करोगे और सबके वन शॉट वीडियोस जरूर देखना साथ में. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कोहर्ट वेयर if you have scored between 50 and 105, approximately you are around 90 percentile, but आप उस threshold को cross नहीं कर पा रहे हो. So now if you know certain things but you don't know the entire thing, तो बच्चों आपके लिए यहां पे टारगेट स्कोर, पहला टारगेट स्कोर इज 150 प्लस. मतलब हम एटलीस्ट आता है और हम बहुत गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं. सो योर अल्टीमेट फर्स्ट गोल इन अप्रैल इज 150 प्लस. एक बार जब वो आ जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट इन मे शुड बी 180 और 200 प्लस. ठीक है. सो नाउ आपके लिए मैंने टॉपिक्स बढ़ा दिए हैं, मतलब बिल्कुल मैंने इसी तरीके से लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, but you have certain topics of 11th as well. So if you talk about maths में I have added straight lines and circles of 11th chapter, ये लिख दिया. बाकी सारे टॉपिक्स वही है. यहां पे इंटीग्रल कैलकुलस लिखा है इंस्टेड ऑफ ओनली डेफिनेट, बिकॉज डेफिनेट इनडेफिनिट तो आर.डी. शर्मा से करना ही करना है, आपको बोर्ड के लिए भी करना है. तो इट इज गुड दैट यू शुड रिवाइज इट एंड उसके साथ साथ मतलब डेफिनिट इनडेफिनिट दोनों ही करना है. ठीक है. और लिमिट कंटिन्यूटी करना ही है, एओडी करना है, मैट्रिक्स एंड वेक्टर एंड 3D करना है. सो एनी स्टूडेंट हु एक्चुअली इज बिटवीन 50 एंड 15 आपको ये टॉपिक्स करने हैं प्लस स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल ऑफ 11th. इन केमिस्ट्री देयर आर फ्यू टॉपिक्स व्हिच आई हैव एडेड. द टॉपिक्स आर मेटलर्जी मैंने ऐड कर दिया और मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशंस ऐड कर दिया 11th के. तो 2 मैंने एडिशनल टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं, मेटलर्जी एज वेल एज मोल कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है. मतलब ऑर्गेनिक अगर आप एक्स्ट्रा कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 12th में बोर्ड के लिए आप वैसे भी तैयारी करोगे. सो इफ यू आर एबल टू रीड एनसीईआरटी प्रॉपर्ली, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट कपल ऑफ ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. मतलब 2021 और 2020 के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना फॉर द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें जो आप कर सकते हो रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, के लिए केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम
20 एंड 21, बस ये 2 साल के कर लेना, और एनसीईआरटी तो करना ही करना आपको, और बाकी सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 18, 19, 20 एंड 21 ये करना है कंप्लीट आपको, एंड यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और उसमें भी क्या है, क्वेश्चन को केवल सॉल्व नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है व्हेनेवर देयर आर 4 ऑप्शंस, स्पेशली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, if the 3 wrong answers are there, then what these wrong answers will do to that reaction, वो आपको पता करना है, because through that your level of understanding of chemistry और inorganic जो याद करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, एंड आप बहुत ज्यादा देर तक रिटेन कर पाओगे। ठीक है, नाउ जिनको 98 एंड 99 परसेंटाइल ऊपर आ रहा है, राजन जैसे आप बोल रहे हो, आपको एकलव्य में ही ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, वो उसका यहां पे दिया हुआ, लिंक में दिया हुआ है, आप उसको देख लेना। और फिजिक्स में व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एडेड हीट एंड थर्मो, ग्रेविटेशन आप देखो, और एसएचएम और वेव्स फ्रॉम 11th। तो 11th के ये 3 टॉपिक्स जो लास्ट में थे, एसएचएम ग्रेविटेशन शुरू हुआ था, ग्रेविटेशन के बाद एसएचएम वेव्स आता है, और उसके बाद हीट एंड थर्मो आता है। ये टॉपिक्स मैंने ऐड कर दिए बिकॉज इससे काफी वेटेज आता है, और 11th के ये टॉपिक्स आपको अप्रैल के लिए कर लेने हैं। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 150 अगर इन टॉपिक्स को ढंग से कर लेते हो, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। नाउ मटेरियल टू बी फॉलोड मैंने लिख दिया यहां पे, प्रीवियस ईयर मेन 2018 से 2021 तक एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए तो इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। केमिस्ट्री में मैंने एडिशनल लिख दिया ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों के लिए ये है। एंड एनसीईआरटी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री प्लस ऑब्जेक्टिव। अगर आपके पास तत्व है, आपने तत्व फॉलो किया है, तत्व इज अ वेदांतु मटेरियल, आप वेदांतु के वेबसाइट पे जाओगे तो उसकी थ्योरी भी मिल जाएगी और उसमें क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम वेदांतु वेबसाइट, और एनी ऑब्जेक्टिव बुक, कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक। एनसीईआरटी रीडिंग से कुछ काम नहीं चलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव साथ में सॉल्व करना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व। मैथ्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिजिक्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कोहर्ट विच इज, अगर आप इस जोन में हो 100 से 150 के बीच में, तो आपका टारगेट स्कोर 200 एंड अबव होना चाहिए। मैंने 50 मार्क्स का इंक्रीमेंटल दिया है। अगर आप 180 के पर लेके आते हो, क्योंकि ये वाला जोन जो है अब कंपटीशन यहां पे बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड दिस इज अ वेरी जैम पैक्ड जोन, तो यहां पे 180 प्लस भी इज अ गुड स्कोर डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ पेपर यू हैव, इजी और टफ। बट 200 मैंने सेफ साइड पे लिखा है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन दिस एंड इंप्रूव योर मार्क्स फ्रॉम 150, 105 टू 200 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू स्टैंड टुडे, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट यहां पे है, यहां पे क्या है देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल चैप्टर्स टू बी कवर्ड, बिकॉज इफ यू आर टारगेटिंग, जैसे ही आप 160, 170 जोन के ऊपर जाते हो, आपको सारे चैप्टर्स कवर करने, बिकॉज दिस टाइम एनटीए स्पेशली इन फरवरी एंड मार्च दोनों ही अटेम्प्ट्स में रैंडमनेस काफी बढ़ा दी। मतलब देयर इज नो सीक्वेंस एंड देयर इज नो फॉलोइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक। पहले क्या होता था, एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं, बट अभी ऐसा नहीं है, किसी भी टॉपिक से कुछ भी आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू कवर ऑल दी चैप्टर्स। कहां से करोगे? पूरा फिजिक्स और मैथ्स को बेस्ट है रिवाइज करने का तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज करना शुरू करते हो, सडनली यू रिमेंबर ऑल दी फॉर्मूलाज जो आपने याद किया हुआ। मतलब कि 105 से 150 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हो, which means you have already covered lot of syllabus, you know lot of things, but you are not able to recall, or you commit lot of silly mistakes in the paper. And what you need to do is revise all previous year questions from physics and maths, so that at least आपको पूरा फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, then another thing that you have to do is SCQ of advance, मतलब सिंगल चॉइस क्वेश्चन ऑफ एडवांस। ये इस अटेम्प्ट में देखा है मार्च में, लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एडवांस, एंड इफ यू हैव रिवाइज्ड बेसिक सिंगल चॉइस क्वेश्चन, हर चैप्टर में देखोगे 25-30, कोई भी आप पब्लिशर की आप प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज बुक खरीद लोगे तो उसमें आपको दिखेगा 30-40 क्वेश्चन ऑफ सिंगल चॉइस, उतने क्वेश्चंस करने हैं ढंग से। ठीक है, नाउ केमिस्ट्री में तो ऑफ कोर्स सबके लिए रामबान इज एनसीईआरटी you have to follow at any cost, NCERT for inorganic and organic chemistry, and previous year mains for even फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल के लिए प्रीवियस ईयर काफी है, क्योंकि उसमें रिवाइज ही करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है। बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीड करोगे, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करोगे, एससीक्यू तो करोगे ही करोगे, बट केमिस्ट्री में मैंने एडिशनल डाल दिया है, केमिस्ट्री में वीके जायसवाल भी कर दिया है।
वीके जायसवाल से क्या होगा, आप थोड़ा हाई लेवल इनऑर्गेनिक कर लोगे। इस साल इनऑर्गेनिक बहुत रैंडम आया था और स्टेटमेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। अगर आप वीके जायसवाल कर दोगे तो आपकी एडवांस की भी साथ में केमिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी, इनऑर्गेनिक पूरे अच्छे से हो जाएगा अगर कर पाओ तो। इफ यू हैव टाइम देन ओनली यू शुड बी फोकस्ड ऑन दिस, अदरवाइज यू शुड लीव। यस 41 ईयर वाला सही है, ठीक है तेजस्वनी। सो बेसिकली यू शुड फोकस ऑन दिस। नाउ एज आई सेड, मैंने लास्ट में भी बोला था एंड थैंक यू फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स हैव ट्रस्टेड दैट एनी स्टूडेंट हु इज एक्चुअली बिलो 105 उसको तो आंख बंद करके क्रैश ज्वाइन कर लेना चाहिए। इनफैक्ट 120 130 के नीचे है, क्योंकि क्रैश में हम सब कवर करा देंगे। 15 लेक्चर है और आपने देखा होगा, मतलब इस टाइम पे एक टीचर का साथ होना बहुत जरूरी है। जैसे ही टीचर आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा, बताएगा, तो जो चीजें आप खुद से कर रहे हो, ठीक है। मैंने एक सीक्वेंस बनाया था बेस्ट फायदा उठाने का, क्योंकि क्रैश तो बहुत बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, बट ज्वाइन करने के बाद क्या करना चाहिए था और उससे फायदा कैसे मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको मतलब अगर मैं यहां पे दिखाऊं, लेट मी जस्ट गो बैक। सो बेस्ट तो ये है कि वन शॉट वीडियोस देखने हैं, क्रैश कोर्स करना है और उसके बाद असाइनमेंट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। सो क्लियरली इफ यू गो इन द डिस्क्रिप्शन यू विल एक्चुअली गेट दिस लिंक। ये लिंक खोलोगे तो यहां पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल वन शॉट के सारे चैप्टर जो भी कवर हुए हैं, वो फिजिक्स का वन शॉट यहां पे सारा चैप्टर मिल जाएगा। आप कोई भी चैप्टर क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं वर्क एनर्जी पावर करता हूं तो वर्क एनर्जी पावर ये ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा एंड यू कैन एक्चुअली रिवाइज इट फ्रॉम हियर। यू कैन एक्चुअली लुक फॉर ऑल दी वर्क वन शॉट चैप्टर्स, ठीक है। ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है और अब अभ्यास की बारी। इसमें पूरा मैकेनिक्स एक साथ कवर किया हुआ है, बट आपको वन शॉट ही रिवाइज करना है। वन शॉट इज द बेस्ट वे बिफोर अटेंडिंग द क्रैश कोर्स क्लास। मतलब अगर क्रैश कोर्स क्लास से पहले आप वन शॉट देख लेते हो और वन शॉट देखने के बाद क्रैश कोर्स करते हो और क्रैश कोर्स करने के बाद इफ यू गो बैक एंड सॉल्व द असाइनमेंट, देन इट विल हैव अ मैजिकल पावर। बिकॉज आपने पूरे दिन में जो चैप्टर होने वाले हैं, हर रोज 2 लेक्चर होगा, आपने 2 लेक्चर का वन शॉट किया विच विल टेक 2.5 आवर्स और फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज करो, उससे नोट्स बनाओ और फिर आप अटेंड करोगे तो वहां पे थोड़ी थ्योरी भी होगी। बिकॉज इट विल क्रैश कोर्स में हर चैप्टर हर सब्जेक्ट को 15 लेक्चर दिए और उसमें थ्योरी डिटेल में कराइए। मतलब डिटेल तो नहीं हो पाएगा ऑफ कोर्स, मतलब 2 साल की चीजें हम 15 लेक्चर में कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, बट थ्योरी, बेसिक थ्योरी जरूर कवर हो जाएगी जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे मार्क्स आपके आ जाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा। तो वन शॉट थ्योरी, फिर उसके बाद आप असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे। दैट इज द बेस्ट वे टू एक्चुअली गेट द एडवांटेज ऑफ द क्रैश कोर्स, विच मतलब YouTube को हमने इसी तरीके से सिंक में किया है। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम परमिट करता है, जो कि नहीं होगा, अगर टाइम परमिट करता है तो एक सीरीज अभी आपके लिए लॉन्च करेंगे, मतलब अरविंद सर ने बताया भी होगा, और उस सीरीज को जिसमें क्विक रिवीजन होगा आप उसको कर लोगे लास्ट में, ठीक है, ओनली आफ्टर यू हैव डन दिस। सो बेसिकली वन शॉट वीडियो, क्रैश कोर्स, असाइनमेंट की जगह प्रीवियस ईयर भी कर सकते हो, असाइनमेंट भी कर सकते हो, दोनों में आप देख लेना। असाइनमेंट भी बिल्कुल प्रीवियस ईयर जैसा ही बना हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, ठीक है। एंड क्लियरली ऑल दिस इज थ्रू द लिंक जो कि vdnt.in/apcc21। अगर आप ये क्लिक करते हो तो कूपन कोड इज APCC, आप यूज करोगे 6,000 रुपीज, विच विल एक्चुअली रन दिस क्रैश कोर्स विल रन टिल मे। मतलब कि अभी अप्रैल तक भी होगा, अप्रैल के बाद टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन। जैसे अभी पिछले क्रैश कोर्स में जो बच्चे ज्वाइन किए थे उन सबको, जिनके भी मार्क्स कम है, उन सबको हमने इस क्रैश कोर्स में वापस से ऐड कर दिया है। सो फॉर देम द क्रैश कोर्स हैज नॉट एंडेड, इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। सो अगर जिन बच्चों के भी इनमें मार्क्स ऊपर चले गए 150 के ऊपर, उनको तो हम एकलव्य में शिफ्ट कर देंगे, बाकी बच्चों को वापस से क्रैश कोर्स में डाल देंगे फॉर मे अटेम्प्ट, सो दैट दे गेट द रिविजन अगेन एंड अगेन। सो दिस इज हाउ you have to take the advantage. The link is this vdnt.in/apcc21 and ये स्ट्रैटेजी बच्चों देखो, जो भी हमने बात करी यहां पे, ये बोलना बहुत आसान है, आपको फॉलो करना होगा। और ट्रस्ट मी, इफ यू कम ऑन YouTube, आपको बहुत सारे टीचर्स बहुत गाइड कर रहे हैं एंड दे आर ऑल गाइडिंग। मतलब आपको जो भी अच्छा लगता है और जो भी समझ में आता है बस आप उसको पिक करो, बट एंड टू एंड कंप्लीट करो। ऐसा मत करना कि कुछ आनंद सर ने बोला है, AP सर ने बोला है तो मैं ये कर देता हूं, कुछ आपने गए XYZ कोचिंग में गए, वहां पे कुछ टीचर्स ने बोला मैं वो कुछ कर लेता हूं, कुछ यहां पे कुछ बोला है ये कर लेता हूं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट कंप्लीटिंग वन एंटायर थिंग।
So you have to complete the one entire thing to actually get the maximum advantage. वरना क्या, इसीलिए क्या होता है, सुनने के बाद भी बहुत बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं, because they end up getting confused और बहुत कुछ करने लग जाते हैं, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, and therefore ultimately उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, जितने हैं उससे भी कम हो जाते हैं. So trust me, आपको एक तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि मैं 100 पे हूं तो मेरे को 250 देखना है, 100 पे हूं तो 170 पहले सिक्योर कर लो दिमाग में. अगर आपके मॉक टेस्ट में 170 180 आने लग गए तो एम करेंगे, फिर बढ़ाएंगे अपने मार्क्स. तो हर बार ना इंक्रीमेंटल 50-60 मार्क्स भी अगर आपके इंक्रीमेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, विच मीन्स अ लॉट. मतलब आप ऐसे सोचो कि पहले अटेम्प्ट से अगर मैं 3 बार अटेम्प्ट अगर वो कर लूं तो 150 मार्क्स तो ऐसे ही इंप्रूव हो जाएंगे. बट इट इज इजी सेड दैन डन, क्योंकि हम फॉलो नहीं कर पाते. हमें बस उतना, मैंने बोला इतना करना है, आप इतना करने लग जाते हो कि इतने से थोड़ी ना होगा. बट इतना अच्छे से करना है बच्चों, जो भी अभी यहां बोला है उसको अच्छे से करना है. हर एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसके कॉन्सेप्ट्स के डेप्थ में जाना है, उसमें देखना है कि क्या चीजें मुझसे गलत हो रही हैं, क्या मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, क्या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं, क्या मुझे थ्योरी नहीं पता है. थ्योरी नहीं पता है तो मैं एनसीईआरटी रीड करूंगा, या फिर मैं वन शॉट वीडियो देखूंगा, या फिर मैं अपने कोचिंग के नोट्स रिवाइज करूंगा. तो आपको ये प्लान कर लेना है. तो आज का समय जो है, आप रात में बैठ के 3-4 घंटे 5 घंटे इस लेक्चर के बाद आप बैठो और प्लान कर लो, सो दैट कल से जब सुबह उठोगे तो आप एक सिंगल मोमेंट भी वेस्ट नहीं करने जा रहे हो. ठीक है, और बिल्कुल जम के लग जाना है. एंड ऑल दोज हु आर टॉकिंग अबाउट यार मार्क्स परसेंटाइल, यार उससे कुछ नहीं रखा है. परसेंटाइल आ गई ना, अब ठीक है आ ही जाएगी. मतलब परसेंटाइल जब तक चारों नहीं हो जाते ना, तो बात तो हम कर ही लेंगे. देखो आप पूछते हो तो वीडियो बना देते हैं, बट उसका भी फायदा नहीं है. योर एवरी मोमेंट शुड बी फोकस्ड ऑन हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, एंड दैट इज द वे, दैट इज द होल थिंग. मतलब ये पूरा जो सेशन मैं ले रहा हूं, इसका पर्पस ये है कि आपके 25-30 नंबर भी बढ़ गए नेक्स्ट में, इट इज गुड, इट इज वेरी गुड, एंड यू हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन दैट, राइट. Can't find the link for Eklavya. Rishabh will get it done. We'll get it added in the just after this session. We'll get it added. So बच्चों एक चीज याद रखो, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मतलब आप लोग उड़ान देखो, आसमां बहुत सारे there is so many things to do in this world. आप मतलब लंबी उड़ान भरो, बट उसको स्ट्रैटेजिक भरो, प्लान करके भरो. एंड प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगला 4 घंटा आपकी प्लानिंग में जाना चाहिए. आप कहां पे हो, आपका टारगेट क्या है, आपका फोकस क्या है, और क्या अचीव करोगे और कैसे अचीव करोगे. जो टॉपिक्स के लिस्ट दिए हैं, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, और फिर एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी बनाना कि ये टॉपिक को कितने कितने दिन दिए. इनफैक्ट अगर मैं पीछे जाऊं तो मैंने तो ये भी लिख दिया था कि किस टॉपिक को कितने कितने दिन देने हैं. अब आप देखो यहां पे, आप ये सारे टॉपिक्स ना, आप यहां पे 35, मतलब आप ये मान के चलो 30 डेज के हिसाब से प्लानिंग करना, बिकॉज लास्ट का जो कुछ 7-8 दिन है उसमें टेस्ट देना जरूरी है बच्चों. तो हर एक टॉपिक के लिस्ट लिखना, कहां से करोगे. वन शॉट करना है तो वन शॉट करना है, वेदांतु करना है तो वेदांतु करना है, आपको कोई और ऑनलाइन का पसंद है तो आप उसका कर लो. बट आपको एक बार प्लान करना है कि इसका मैं थ्योरी कहां से रिवाइज करूंगा, इसके क्वेश्चंस मैं कहां से सॉल्व करूंगा. और ये जब साथ में पूरा प्लानिंग हो जाएगा आपका, तब उसके बाद पढ़ाई में लगना. बिल्कुल पढ़ाई पे मत जंप कर जाना बिना प्लानिंग के. अगर जंप कर जाओगे तो आप खराब कर लोगे. आप 3-4 दिन के बाद पता नहीं चलेगा कि यू विल फाइंड योरसेल्फ लॉस्ट. मतलब आपको बिल्कुल गायब हो जाओगे कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं, ये करना था मुझे, ये कर रहा हूं. हर रोज की प्लानिंग करनी है आपको बेटा, एंड टॉपिक वाइज प्लानिंग करनी है कि मुझे ये एक हफ्ते में फिजिक्स का इतना, केमिस्ट्री का इतना, मैथ्स का इतना कंप्लीट कर लेना है. थ्योरी यहां से करनी है, क्वेश्चंस यहां से करने हैं, और प्रैक्टिस यहां से करनी है. ठीक है, ये सारा कुछ कर लेना है. एंड विश्वास, एडवांस की प्रिपरेशन एकलव्य में होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो चार्ज. एडवांस में अगर आप 150, 160, 96 परसेंटाइल के ऊपर अगर आ रहा है आपके मार्क्स, तो यू कैन अप्लाई फॉर एडवांस. एकलव्य का लिंक मैं शेयर करा देता हूं, और आप उसमें जाके चुपचाप जो वहां पढ़ाया जा रहा है उस पर लग जाओ. लेकिन वहां जाके मेंस की तैयारी बहुत अच्छी होगी ऐसी गारंटी नहीं है, क्योंकि एडवांस में हाई लेवल कराई जाती है, उससे स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है. तो अगर अभी भी आप एम कर रहे हो मेंस में नंबर बढ़ाने की, देन एकलव्य को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा. क्योंकि एकलव्य में गए तो एकलव्य में तभी रहोगे जब आप कंटिन्यूअस क्लास करोगे, और कंटिन्यूअस क्लास करोगे, मेहनत करोगे, तो आप एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लेके आ जाओगे. राइट, चलो. सो बेसिकली बच्चों, आई थिंक ऑल द वेरी बेस्ट.
I will not take much of your time. Your time is very precious. Every moment from this time onwards, मैंने बोला था 2 दिन की छुट्टी ले लेना, ठीक है. अरविंद सर और ऋषि सर मेरे को दबा दिया था उन्होंने, बट वो 2 दिन की आई होप आपने रिलैक्स कर लिया होगा, थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लिया होगा, थोड़ा बहुत. एंड आज के बाद हर मोमेंट इज वेरी वेरी कॉस्टली फॉर यू, वेरी कॉस्टली. मतलब आपके लिए टाइम की कीमत है, ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. विद दिस, एनी क्वेरी, एनीथिंग, राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल गो थ्रू द क्वेरी. एंड एनीवन हु इज कंफ्यूज्ड, जिसको नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना है, मेरे से प्लानिंग भी नहीं होती, मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं, आप तो सिंपली क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो. मतलब एनीवन हु कैन नॉट प्लान, प्लीज ज्वाइन द क्रैश कोर्स. इट्स अ 45 सेशन जैम पैक्ड सेशन, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस. बट इसका मैक्सिमम एडवांटेज हम सब ने मिलकर, मैं, अरविंद सर, सब बैठे हुए थे और हम ये बता रहे थे कि इसका मैक्सिमम एडवांटेज विल हैपन इफ यू एक्चुअली वॉच वन शॉट वीडियो बिफोर क्रैश कोर्स, सो दैट आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, जो भी चैप्टर होने वाला है, एंड देन असाइनमेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, विद दिस आई वुड टेक योर लीव एंड I love you all. We all are working really hard. I really want you to thank all the teachers of Vedantu. They are really working very very hard for all of you. In fact, सारे teachers पूरी दुनिया में जितने teachers हैं सब मेहनत करते हैं आपके लिए. बट मैंने तो अपनी आंखों से अपने वेदांतु के टीचर्स को दिन रात मेहनत करते हुए देखा है, ठीक है, और बहुत मेहनत करी है. अभी तक तो जो भी एग्जाम्स आए हैं उसके लिए जी जान लगाया हुआ है उन्होंने. एंड आगे भी जितने एग्जाम्स होंगे उसके लिए और डट के मेहनत करेंगे. बट आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप उससे ज्यादा मेहनत करो यार. मतलब मचा दो यार, मतलब फोड़ना है जाके अपने को एग्जाम में. और वो तभी होगा जब इंटरनल एनर्जी, मतलब अंदर से एनर्जी, मतलब उसकी जरूरत, मतलब मेरी जरूरत क्यों है, कालिया सर की जरूरत क्यों है, मेरे भाई मेरे दोस्त क्यों जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. आप खुद में शेर हो यार, आप खुद में शेर हो. आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर है. मतलब आपको जो चाहिए ना बचपन से आपने हमेशा पाया है. मतलब आपको एक वीडियो गेम खेलना था तो आपने शक्ल ऐसे बना ली, रोना आ गया. मतलब बचपन से ही, मतलब आपको रोना धोना करके आपने अपनी जो भी चाहत की चीजें सब पाई हैं. अब पढ़ाई की चीज तो आपको खुद से पानी है ना. अब उसके लिए किसके सामने नाटक करोगे, नहीं कर सकते. तो आपको खुद के लिए अंदर से वो विश्वास जगाना होगा, अंदर से वो फायर लेके आना होगा, फायर इन दैट बेली, कि मतलब बस मचा देंगे यार, मचा देंगे अगली बार जाके. ठीक है, चलो, विद दिस I take your leave, permission to go, and love you all. Bye bye, tada, and take care.